روحانی دنیا میں دعا آپ کا روحانی سانس ہے. دعا کے لیے جاگنا بھی پڑتا ہے, شفاعت کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے, اذیتوں اور دکھوں میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. دعا کرنے والا شخص کیونکہ روح سے معمور ہوتا ہے, وہ خدا کا ہوتا ہے, وہ اپنے اندر روحانی سانس لیتا رہتا ہے, وہ رکتا نہیں ہے. ہماری دعا کا فوکس صرف ہم ہے. ہم جو نتائج چاہتے تھے یا ہونے چاہیے وہ نہیں نکلتے, کیونکہ دعا میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں. دعا ایماندار کا روحانی سانس ہے. اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ سانس تو ہر روز لیتے ہیں, کیا آپ کا روحانی سانس بھی چل رہا ہے؟ ہماری یہ دعائیہ تحریک, یہ بوجھ, یہ رویا, یہ ویژن ہے. اور جو کام ویژن سے کیا جاتا ہے وہ چند دنوں کے لیے نہیں ہوتا, وہ کئی دہائیوں پر محیط ہوتا ہے, اور یہاں تک کہ آنے والی نسلوں تک وہ کام جاری رہتا ہے. آمین. کیونکہ اس کی بنیاد رویا پر ہوتی ہے, خدا کے کلام پر ہوتی ہے. کئی چیزیں, تحریکیں ایک دوسرے کو دیکھ کر شروع کی جاتی ہیں, وہ زیادہ دیر نہیں چلتی, کیونکہ ان کی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی, بنیاد نہیں ہوتی, روٹس نہیں, وہ روٹڈ نہیں ہوتی. تو یہ دعائیہ تحریک ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ وقت خدا کے قدموں میں دعا میں ٹھہرے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی تعلق سے ہے. اس میٹنگ میں جتنے مضامین ہوتے ہیں وہ دعا کے تعلق سے ہوتے ہیں, شفاعت کے تعلق سے ہوتے ہیں, روزے کے تعلق سے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ دعا روزے کا سیشن ہوتا ہے. تو آج کا جو پیغام ہے وہ دو باتیں ہیں جن کو ہم فوکس کرنے والے ہیں, جن پر ہم زیادہ غور کرنے والے ہیں. وہ نوٹ فرما لیں. ویسے تو میں نے اس کا ٹائٹل دیا ہے دعا روحانی سانس, اسپرچل بریتھ ہے آپ کی دعا. جیسے جسمانی زندگی سانس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ زمین اگر یہاں سے آکسیجن ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ جو آپ کی زمین ہے نا, یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گے. آکسیجن نے اسے جو سسٹین کر رہی ہے, جو ایگزسٹ کر رہی ہے, وہ آکسیجن کی وجہ سے. آکسیجن نہیں ہوگی, there is no oxygen, there is no life. وہاں پر زندگی بھی نہیں ہوگی. تو اسی طرح روحانی دنیا میں, اسپرچل لائف کے اندر دعا آپ کا روحانی سانس ہے, آکسیجن ہے. یہ آج کا ٹاپک ہے. اس کے ساتھ ساتھ دعا اسپرچل ریسلنگ بھی ہے, کشتی. ایک کہتے ہوندی نا نورا کشتی, اے نہیں نورا کشتی. نورا کشتی سمجھ دے ہو, ایویں چیویں دی جعلی کشتی. نو 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 نو, یہ سیریس میٹر ہے. آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ سیریس میٹر ہے. آپ کی دعائیں آسمان پر جمع ہوتی رہتی ہیں. اگر دعا کا جواب ابھی تک نہیں آیا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ خدا نے انکار کر دیا. نو, اس پر پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ دعا کا جواب ہاں میں بھی ہوتا ہے, نہ میں بھی ہوتا ہے, اور انتظار بھی ہوتا ہے. ویٹ. کئی چیزوں کے لیے خدا ہمیں انتظار کرواتا ہے, اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے. دعا روحانی سانس یا اسپرچل لائف کی آکسیجن, دعا اسپرچل ریسلنگ یا روحانی کشتی. آؤ دیکھیں مقدس کلام میں سے تھسلنیکیوں, پہلا تھسلنیکیوں 5ویں باب کی 16 اور 17. خداوند کے کلام مقدس میں یوں رقم ہے, ہر وقت خوش رہو, بلا ناغہ دعا کرو. دعا کرو. بہت شکریہ. مقدس کلام کے پڑھے, سنے, سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت. آمین. ہر وقت خوش رہو. اس پر پہلے میں نے سکھایا تھا کہ دعا کرنے والا ہی خوش رہ سکتا ہے, دوجا نہیں.
दुआ करने वाला हर वक्त खुश रह सकता है, दुआ ना करने वाला हर वक्त खुश नहीं रह सकता। दुनिया में हर वक्त जो खुश रहने वाले लोग हैं वो दुआ करने वाले लोग हैं। अब हर वक्त की बात हुई है, बिला नागा की बात हुई है, तो मौजू क्या है हमारा? दुआ रूहानी सांस, स्पिरिचुअल ब्रेथ है आपकी। बिला नागा के लिए जो यूनानी मतन में है बिला नागा, आप हैरान हो जाएंगे। जो ग्रीक मतन है उसमें इसके जो मानी लिए गए बिला नागा के हैकिंग कफ, जिन्हों तुसी पंजाबी च खुश्क खांसी कहते हो, ये यूनानी में, यूनानी का जो लिटरेचर है उसमें इसके ये मानी निकले हैं, ये बिला नागा के। यानी तानू खुश्क खंग लग जाए, जिन्हों उथू भी कहीदा है, वो कई कई घंटे लगा रहता है। उसको आप जब्त भी करना चाहे ना, भी लागे लोग बैठे हुए ने ते मैं ना खंगा, तुसी फिर भी खंगना है। तो जो ग्रीक मतन है उसमें ये मानी लिए गए हैं कि जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको आप रोकना चाहें फिर भी नहीं रोक सकते। दुआ करने वाला शख्स क्योंकि रूह से मामूर होता है, वो खुदा का होता है, वो अपने अंदर रूहानी सांस लेता रहता है, वो रुकता नहीं है। इसका ये मतलब है कि वो रुकता नहीं है, उसे कोई रोकने की भी कोशिश करे वो नहीं रुकेगा, ये जारी रहेगा। बिला नागा के जो मानी लिए गए हैं यूनानी मतन में वो ये है कि ये मुसलसल जारी रहने वाली चीज है दुआ। कदी कदी नहीं, कईयों ने पूछो कहन के जी कदी कदी दुआ करी दी है। आगे चलकर हम और चंद एक चीजें सीखने वाले हैं, बड़ी खास चीजें। आप कभी कभी दुआ ना किया करें, आप मुसलसल दुआ किया करें, क्योंकि ये आपका रूहानी सांस है, स्पिरिचुअल ब्रेथ है, आपकी ऑक्सीजन है, लाइफ सस्टेन करती है, एग्जिस्ट करती है लाइफ। ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी आप मर जाएंगे। आप दुआ नहीं करते, आप रूहानी तौर पर मरे हुए हैं, आप मुर्दा हैं, आप रूहानी तौर पर डेड हो चुके हैं। तो इसलिए एक और हवाला हम देखते हैं, इफिसियों छठे बाब की 18वीं आयत। और हर वक्त और हर तरह से, और हर वक्त और हर तरह से दुआ और मिन्नत करते रहो, दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से जागते और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के लिए, कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। फिर बिला नागा आ गया है। और क्या इसका मतलब निकाला है यूनानी मतन में? खुश्क खांसी जो रुकती नहीं है, अब बड़ा कई हफ्ते आप उसका इलाज करवाते हैं, उन्हीं मानों में लिया गया है। तो अब यहां पर क्या लिखा है? और हर वक्त। अब हर वक्त तो नहीं हम कर सकते दुआ। अगर किसी को कहे जी हर वक्त दुआ करो, कहेगा जी हर वक्त बच्चियों की रोटी भी तो कमानी है। इस पर मैंने बताया था कि स्पिरिट में दुआ हर वक्त हो सकती है, हालेलुया। यानी रूह में दुआ हर वक्त हो सकती है। आप सो रहे हैं, मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है, गजल की किताब में लिखा है, मैं सोती हूं पर मेरा, यानी आपकी स्पिरिट लगी हुई है अपने दूल्हे के साथ, आप रूह में दुआ कर रहे हैं, आप गैर जुबाने बोलते हैं, ये रूह में दुआ करना है। इस पर हम सीख चुके हैं। गैर जुबानों में दुआ करने से मुराद रूह में दुआ करना है। आप रूह में दुआ करते रहते हैं, आपके अंदर ही अंदर ये कनेक्शन बना रहता है। अब यहां पर लिखा है और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इस घर से जागते रहो। जागना भी पड़ता है दुआ के लिए, यह भी गौर तलब कर ले। दुआ के लिए अगर आप कहेंगे जी मैं नींद का बड़ा प्यारा है, ठीक है तुसी नींद दे प्यारे हो, लेकिन दुआ करने लिए तुहानू जागने भी पैना है।
اس لیے جو شفاعت ہے، انٹرسیشن، یہ مشکل کام ہے، یہ سب نہیں کر سکتے۔ اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں انٹرسیسر کون کون ہے، میرا نہیں خیال کچھ چند تو زیادہ لوگوں کا ہاتھ اٹھے گا۔ میں آپ سے پوچھوں پاسٹر کون ہے، بشپ کون ہے، ڈاکٹر کون ہے، فلاں کا، سارے ادھر بھی پاسٹر، ادھر بھی پاسٹر، ادھر بھی پاسٹر، آپ کو پاسٹروں کی جناب پوری مل جائے گی تعداد، بھیڑ۔ انٹرسیسر نہیں ہے ہمارے پاس، دعا کرنے والے لوگوں کا فقدان ہے، کمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے نتائج نہیں آ رہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر بلی گراہم اپنے کروسڈ والی جگہ پر کئی دن اپنی ٹیم کو بھیج کر دعا کروایا کرتے تھے، ہن دعا دی بجائے واشنگ مشیناں اشتہاراں تے لاتیاں نے، چنگچی پا چھڑے نے اتنے اشتہار تے، دسو یار اے کروسڈ ہو رہے نے۔ یہ کرنے چاہیے، کام اچھے ہیں، نیکی کے کام کرنے چاہیے، لیکن اس کا طریقہ فرق ہے، اس کا تعلق ایونجلزم کے ساتھ نہیں ہے۔ آل اباؤٹ اسپرچل وارفیئر، یہ روحانی جنگ کا کام ہے، اسے روحانی طور پر لینے کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو اس لیے دعا کے لیے جاگنا بھی پڑتا ہے، شفاعت کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اذیت اور دکھوں میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ میں نے کہا تھا کہ روحانی کشتی بھی ہے، اسپرچل ریسلنگ بھی ہے دعا جو ہے۔ اب لکھا ہے اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب، اور اسی غرض سے جاگتے رہو جی کہ سب مقدسوں کے واسطے۔ ہاں ہن آ گئی گل دوجیاں لئی دعا۔ ایک تے دعا نا بھی مینوں برکت دے، میری بیوی نوں برکت دے، میرے بچیاں نوں برکت دے، مینوں ہی برکت دے، سادے لفظاں چ مینوں ہی برکت دے، کسی ہور نوں نہ دے۔ اس سے اگلا لیول کیا ہے؟ اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ نیکسٹ لیول یہ ہے، ہم صرف اپنے آپ کو فوکس کر رہے ہیں، ہماری دعا کا فوکس صرف ہم ہے، اور ہمارا ایک سرکل جو ہے اس میں رہ کر ہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر چرچ کو انکریج کیا گیا ہے کہ تم نے صرف اپنے آپ کو فوکس نہیں کرنا، دوسروں کو، مقدسین کو، ایمانداروں کو بھی اپنی دعاؤں میں فوکس کرنا ہے۔ آمین۔ آپ ہر وقت سانس لیتے ہیں جی؟ اچھا مجھے وہ لوگ اپنا ہاتھ دکھائیں جو گھڑی دیکھ کر اپنا سانس لیتے ہیں۔ جی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جسمانی زندگی کے لیے آپ کا سانس، آکسیجن بہت ضروری ہے۔ آپ نے گھڑی دیکھ کر کبھی سانس نہیں لیا تو پھر دعا میں آپ کو کیا مسئلہ بنتا ہے؟ آپ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، یہ 4 کدوں بجنے نے، ایویں موبائل میں چیک کر دے 4 کدوں بجنے نے۔ ہم سنجیدہ نہیں ہیں دعا میں، ہم جو نتائج چاہتے تھے یا ہونے چاہیے وہ نہیں نکلتے، کیونکہ دعا میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ دعا ایماندار کا روحانی سانس ہے۔ اور پھر لوکا 18ویں باب کی پہلی آیت سے 7ویں آیت، فرسٹ 7 verses۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا۔ وہی بات خداوند نے کی ہے جو پولس رسول کی معرفت اپنے حوالہ جات تلاوت کیے، ہر وقت۔ ہاں جی، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا، کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ جڑا دعا کر رہا ہے دا مطلب وہ ہمت والا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ کی ہے؟ ہمت والا۔ تے جنہوں نے دعا چھاڑ دیتی ہے وہ ہمت ہار گیا ہے۔ اسی نہ جنگ ہارنے نہ ہمت ہارنے، کیونکہ اسی دعا کرتے رہنے ہیں۔ یہ ہم سب کو، یہ اصول ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ دعا میں ہم نے ہمت دکھانی ہے، ہمت ہارنی نہیں ہے ہم نے۔ جی آگے جی۔ اور ہمت نہ
हारना चाहिए। जी, उनसे ये तमसील कही अब तमसील क्या कही कि किसी शहर कि में किसी शहर में एक काजी था, एक काजी था, ना वो खुदा से डरता, ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता ना था, आदमी कि कुछ परवाह करता परवाह करता था। और उसी शहर में और उसी शहर में एक बेवा थी, एक बेवा थी जो उसके पास आकर जो उसके पास आकर ये कहा करती थी ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कि करके मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसा तक उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा। हाँ, अब अपने जी में क्या कह रहे हैं, ऐ बड़ी गौर तलब कर ले। जी में क्या कह रहे हैं वो कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं। इंसान नू अपने कमां दा पता हुंदा मैं किहड़ी कैटेगरी दा हां। ऐ गल मैं दसना चाहना, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं पता, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ अपना सारा ही पता है। और मैंने इस पर यह नोट दिया था एक दिन कि इंसान सबसे ज्यादा अपने बारे में जानता है। तुम कहते हो जो मैं तेनू बड़ा जानना, नो 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 नो, तुसी अपने आप नू भाजी बहुता जानते हो। इंसान सबसे ज्यादा अपने बारे में जानता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं अंदर से क्या हूं, मेरी अंदर की जो हालत है वो क्या है। इन सब इंसान सबसे ज्यादा अपने बारे में जानते हैं। एक गल एक कह रहे हैं जी, वो अपने जी में क्या कहने लगा, उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा, अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता, ना खुदा से डरने वाला है ये, फिर और ना आदमियों की कुछ परवाह करता और ना आदमियों की, यानी बंदियां नू भी पल्ले नहीं बनदा। जड़ा बंदियां नू ना पल्ले बनने, उन्हें रब नू की पल्ले बनना। इहदी हालत है गौर करो इस काजी दे, जिसकी तमसील यीशु मसीह बयान कर रहे हैं। ना आदमियों को कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए के ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। अगली गल, ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। शुक्रिया, आखिर को मेरे नाक में दम करे। बोले मेरे साथ, नाक में। ये रेसलिंग की इस्तिलाह है। मैंने कहा था दुआ रूहानी कुश्ती भी है। ये क्या है, ग्रीक मतन में, यूनानी मतन में ये कुश्ती के मानों में आता है, खास तौर पर बॉक्सिंग का पता है आप सबको। हाँ, जो बॉक्सर होता है मुखालिफ बॉक्सर की कमजोरी ढूंढता है, और जहां से पता चल जाए कि ये यहां से वीक है, पंच करता रहता है, और ओनू बाद साह लेना भी ओदा औखा हो जाता है। ये है नाक में दम कर देना, कि उसके लिए सांस लेना दुश्वार हो जाए। आपका दुआया लेवल ये होना चाहिए कि ये ना हो कि इब्लीस आपकी कमजोरियां ढूंढकर आपका नाक में दम कर दे। आप इब्लीस को इतनी ज़रबे मारे कि इब्लीस का नाक में दम हो जाए और आप फातेह हो जाए। ये रूहानी मानों में इसका ये मतलब है, नाक में दम करना। आप ये भी कह सकते हैं कि दुआ बॉक्सिंग है, रूहानी बॉक्सिंग। इसलिए मैंने कहा ये सीरियस मैटर है। ये ऐसे नहीं है कि हम हवा में मुक्के मारते हैं, बड़े लगे हुए हैं पागल। नो, सीरियस मैटर है। आपकी दुआएं ज़ाया कभी भी नहीं होगी, मैं आपको कह रहा हूँ। यकीनन दुआओं का जवाब आएगा। अपने पाकिस्तान में देखा, जंग के दौरान देखा, सैलाबों में देखा, कोरोना में देखा कि जिस तरह बोझ के साथ चर्च कलीसिया दुआ करती रही, खुदा ने रहम किया, खुदा ने चीज़ों को बहाल किया, खुदा ने लोगों को शिफा भी दी। तो इसलिए बतौर चर्च अपने एजाज़ को, अपने इस्तेहकाक को समझे। फिर यीशु क्या कहते हैं, 7वीं आयत पढ़ें जी, लूका 18:7।
वाओ। बस क्या खुदा हाँ, फिर यीशु मसीह काजी की तमसील बयान करने के बाद फिर क्या कहते हैं? बस क्या खुदा मैंने बताया था कि पस लफ्ज जो है नतीजतन इस्तेमाल होता है। इस पर मैंने उर्दू की जो टर्म है उसमें मैंने ये बताया था कि पस का जो इस्तेमाल होता है ये नतीजे के लिए, रिजल्ट के लिए होता है। अब यीशु रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं इस तमसील का, सुने। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का बस खुदा क्या अपने बरगजीदों का हालेलुया, बरगजीदा जो खुदा की आवाज को सुनते, जिन्होंने बुलावे को पहचाना, उनकी बात हो रही है। बस खुदा क्या अपने बरगजीदों बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा, इंसाफ ना करेगा, जो रात दिन उसे फरियाद करते उससे हैं, फरियाद करते हैं। हालेलुया। रात दिन दुआवां करने वालियां दियां दुआवां दा जवाब लाजमी आंदा है। और खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली। अगर आप रात दिन दुआएं करते हैं तो बेदिल ना हो। अगर वो बेइंसाफ काजी जो ना खुदा से डरता था, ना आदमियों की कोई वैल्यू थी उसकी नजर में, वो तैयार हो गया उस बेवा का इंसाफ करने के लिए, तो आपका खुदा जो सच्चा है, सादकुल कौल है। और आपको पता है खुदा की ज़ात के बारे में जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे ज़ाती तौर पर अच्छी लगती है वो ये है कि हमारा खुदा भला है। God is good। खुदा भला खुदा है। ये सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन खूबी है हमारे खुदा में कि वो भलाई का खुदा है। वो आपका भला चाहता है। वो आपकी दुआओं का जवाब क्यों नहीं देगा? तो इसलिए दिन रात हमारी दुआएं जारी रहनी चाहिए। कुलुसियों चौथे बाब की 12वीं आयत। हम बात कर रहे हैं दूसरा जो हमारा इसमें जो टॉपिक था या पॉइंट था, पहला था कि दुआ रूहानी सांस है, और दूसरा क्या था? दुआ रूहानी कुश्ती है, रेसलिंग है। जी, कुलसियों 4:12। जी एस्टर पढ़िएगा। अप्राप्स हाँ जी, इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का बंदा है, मसीह यीशु का बंदा है, तुम्हें सलाम कहता है। तुम्हें क्या कहता है? सलाम कहता है। हाँ जी, सलाम कहता है। पौलुस रसूल लिख रहे हैं उसकी बाबत। फिर वो तुम्हारे लिए दुआ करने में हमेशा जान फशानी करता है। वाह वाह वाह। वो क्या करता है? जान फशानी। इंग्लिश वर्ड एग्नी भी इस्तेमाल हुआ है जो अजियत के मानों में आता है, जो तकलीफ के मानों में आता है। और मैंने चलते चलते ये बात बताई थी आपको शुरू में कि जो शफात करना है ये आसान काम, ये अजियत बर्दाश्त करने वाली बात है। तो आज कौन किसी के लिए अजियत बर्दाश्त करता है? नो, क्योंकि हम तो खुदगर्जी की दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन जिनको दर्द लगे हैं, जिनको खुदा ने दुआ की खिदमत दी है, जो इंटरसेसर है, जिन्हें शफायती खिदमत मिली है, वो आज भी लोगों के लिए बोझ के साथ दुआ करते हैं। वो आज भी रोज़ा रखते हैं। वो आज भी एग्नी यानी अजियत में से गुजरते हैं। इफ्रास क्या करता है? जो तुम में से है और मसीह यीशु का बंदा तुम्हें सलाम कहता, वो तुम्हारे लिए वो तुम्हारे लिए दुआ करने में हमेशा जान फशानी करता है ताकि तुम कामिल होकर पूरे इत्तेकाद के साथ खुदा की पूरी मर्जी पर कायम रहो। दुआ क्या करता है? कि तुम खुदा की मर्जी पर कायम रहो, कोई तुम्हारे ईमान को खराब ना कर दे, हिला ना दे। उसकी दुआ का जो मौजू है वो ये है, तुम्हारी ईमान में मजबूती। तो आज बड़ा मसला है, आज पूरी दुनिया में बेदीनी का राज है। हमें लोगों के लिए दुआ करनी है ताकि लोग अपने ईमान से ना फिर जाए, ईमान से ना फिर जाए। और इस आयत को जब आप यूनानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहां पर भी रेसलिंग है, जान फिशानी
को वहां भी रेसलिंग के मानों में लिया गया है कि जैसे एक कुश्ती करने वाला जो है वो बड़ी मेहनत करता है, वो बड़ी स्ट्रगल करता है ताकि वो सेहरा हासिल करे। और फिर आखिरी हवाला है और उसके बाद चंद एक बातें और हम सीखेंगे और फिर दुआ में हम ठहरने वाले हैं। लूका 22वें बाब की 39वीं आयत से लेकर 46वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। आओ देखें खुदा के कलाम में से जैतून के पहाड़ पर दुआ। आओ देखें। फिर वो निकलकर जी अपने दस्तूर के माफी, ये रूटीन थी खुदावंद की, ये कोई आम बात नहीं थी कि अचानक चले गए। ये जो लफ्ज दस्तूर है ये गौर तलब है यहाँ पर इस आयत के अंदर कि यीशु मसीह अपने दस्तूर के मुआफिक, यानी जैतून का जो पहाड़ है, पढ़े जी आगे। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा दुआ करो कि आजमाइश में न पड़ो। बहुत शुक्रिया जी। कहाँ गया वो? जैतून के माउंट ओलिव, जैतून का पहाड़। और गेत्सेमनी का मकाम जो है ये भी आपको याद होगा, गेत्सेमनी बाग था वहां पर। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लेकिन मैं गौर कर रहा था कि उन लोगों के लिए खुदा का शुक्र जिन्होंने यीशु मसीह को अलाउ किया हुआ था कि ठीक है आप यहां पर दुआ कर सकते हैं। अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में लोगों की मर्जी है दुआ करने दें या ना दें, लेकिन वहां पर खुदा यीशु मसीह दस्तूर के यानी यीशु मसीह जाते रहते थे वहां पर। जैतून का पहाड़ खुदा यीशु मसीह की दुआइया मिनिस्ट्री में उसके बड़े बहुत गहरे मानी है। इसी मकाम पर आपको पता है बागे गेत्सेमनी, और वहां पर यीशु मसीह ने जब दुआ की तो दुआ में वही अग्नि की बात जो हो रही है सीयत कि उसका जो पसीना था वो खून बन गया था। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। गेत्सेमनी का मतलब क्या है? कोलू में पीसना, यानी रौंदना, कुचलना। वहां पर भी वो दुआ कर रहा है और अजियत में से गुजर रहा है, क्योंकि वो शफात कर रहा है ना, वो दूसरों के लिए अपने आप को पेश कर रहा है। इस पर 12 हमने सुना है कि गेत्सेमनी का एक ही पैगाम है, दुआ दुआ दुआ। और वो वहां पर पैगाम क्या दे रहा है? दुआ करो ताकि आजमाइश में। अच्छा, वो वहां पर ये सिखा रहे हैं, खुदावंद का फलसफा है दुआ करो ताकि आजमाइश में। तो हमारा फलसफा, मसीहों का फलसफा है आजमाइश आएगी तो दुआ कर लांगे। ये गौर तलब है। उसका पैगाम क्या है? दुआ करो। हमारा फलसफा क्या है? आजमाइश आ जाएगी तो दुआ भी। वो कह रहे हैं दुआ करो ताकि पवो ही ना, असी कह रहे हैं पवांगे तो दुआ भी कर लवांगे। ओ माय गुडनेस, साड़ा दिन उल्टा ही चढ़ता है, साड़ा सूरज इधरों ही निकलता है, क्योंकि हम नेचर के खिलाफ चलते हैं। वो कह रहे हैं कि दुआ करो ताकि आजमाइश में, और हम कहते हैं आजमाइशें आएंगी तो दुआ भी। यीशु की तालीम यह है दुआ करो ताकि आजमाइश में। दुआ करने वाले आजमाइशों में से गुजर जाते हैं, दुआ ना करने वाले आजमाइशों में गिर जाते हैं। हमने आजमाइशों में से गुजरना है, गिरना नहीं है। बनी इस्राएल ने बियाबान में से गुजरना था, बियाबान में रुकना नहीं था। वो रुक इसलिए गए क्योंकि उनके दिल तब्दील नहीं हुए थे। हमारी आजमाइशें इसलिए लंबी हो गई, हमारे दिल तब्दील। और आपको पता है यीशु मसीह जब लूका की मार्फत इंजीली बयान है कि वो जब पहाड़ पर गए तो लिखे है उसकी सूरत लूका 9वें बाब में। ये बात कलम बंद है, नोट कर ले। लिखा है उसकी सूरत बदल गई। वो शागिर्दों के साथ पहाड़ पर दुआ कर रहा था, उसकी सूरत बदल गई। बोले मेरे साथ, उसकी सूरत। दुआ सब तो पहले तानू तब्दील कर दी है,
اور اگر آپ تبدیل نہیں ہوئے تو آپ کی دعا سے دوسرے تبدیل بھی نہیں ہوں گے. میں نے کئیوں کو دیکھا ہے وہ دوجیاں دے پوری زور لا لا کے دعا کر دے. وہ اما طرح جڑی کہندی سی میری دعا کر, وہ پورا زور لا لا کے دعا کر دے نے, لیکن لوگ تبدیل نہیں ہوتے, ٹس سے مس نہیں ہوتے, کیونکہ ان کی دعا نے ان کو تبدیل نہیں کیا. اگر آپ کی دعا نے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو آپ کی دعا دوسروں کو بھی تبدیل نہیں کرے گی. دعا سب سے پہلے آپ کو چینج کرتی ہے. میرے لاسٹ سرمن میں بھی یہ بات تھی کہ دعا کرنے والا, دعا گزار, پرستار, خدمت گزار, پاسٹرز, لیڈرز لوگوں کو خدا کی حضوری میں انٹر کرتے ہیں. پریچر کلام سنا کر لوگوں کو خدا کی حضوری میں انٹر کرتا ہے. ورشپرز, سازندے ساز بجا کر, گیت گا کر لوگوں کو خدا کی حضوری میں انٹر کرتے ہیں. کہ اگر پرستار یا پاسٹر آپ ہی انٹر نہیں ہویا تو باقی کتوں انٹر ہونے نے ہیں؟ وہ آپ نہیں انٹر ہویا تو لوکی کے میں ہوں گے. اور سب سے بہترین بات جو مجھے لاسٹ اپنے سرمن میں نے بعد میں سنی اچھی لگی وہ یہ تھی, مجھے کل کو پوچھ رہا تھا کہ اپنے پیغام آپ بھی سن دیں, میں کہنے مینوں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو جے کتے امریکہ یورپ وزٹ تے یہ فیس سن لے دینے کیونکہ ادھر تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, پاکستان میں نہیں ہوتا. تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں خدا کے پاک روح نے چلتے چلتے دی ہوتی ہیں, وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آ گئی تھی. تو اس میں سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ جو دعا کرنے والا شخص ہے اس کے کردار سے, اس کی زندگی سے خدا کی خوشبو لوگوں کو آتی ہے. لوگ محظوظ ہوتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص میں خدا کی خوشبو آ رہی ہے مجھے. تو اسی طرح اس کی صورت بدل گئی. آپ کی دعا سب سے پہلے آپ کو تبدیل کرے گی اور پھر دوسروں کو تبدیل کرے گی. زیتون کے پہاڑ پر گیا دستور کے موافق. زیتون کا پہاڑ دعا کے لیے بڑا مشہور ہے. باغ گیتسمنی کو لے کر, اور اٹھایا کہاں سے گیا تھا؟ شاباش, کہاں سے اٹھائے گئے تھے خداوند یسوع مسیح؟ اور واپس کہاں پر آئیں گے؟ ایتھے ہی آنا ہے. کئی لوگ کہتے جی ایتھے آنا ہوتے آنا, نہیں نہیں نہیں. یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ سے اٹھائے گئے تھے اور زیتون کے پہاڑ پر وہ آئیں گے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جب کوئی زیتون جو اسرائیل کے اندر ہے اس کے اوپر یسوع کے پاؤں لگیں گے تو کوئی زیتون دو حصوں میں ہو جائے گا اور وہاں یسوع کا تخت لگے گا. ہاللیلویا, کیونکہ وہ بادشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور اس کے تخت سے ایک دریا بہے گا, آدھا مشرق اور آدھا مغرب کو. اور جب وہ مشرق کی طرف جائے گا تو پھر وہ بحر مردار میں چلا جائے گا. اور جب بحر مردار میں اس کا پانی جائے گا تو بحر مردار جو صدیوں سے جس کا پانی کڑوا ہے, کڑواہٹ ہے اس کے اندر, اس کا پانی میٹھا ہو جائے گا. اور یہی کام میرے یسوع کا کفارہ کرتا ہے کہ جو جو اس کے کفارے پر ایمان لے آتا ہے اس کے اندر سے گناہ کی کڑواہٹ چلی جاتی ہے اور اس کی زندگی میں زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. آمین, ہاللیلویا. زیتون کا پہاڑ, جے زیتون کا پہاڑ بڑا اہم ہے. اس لیے جڑا کہے تھا یسوع نے وہ فلاں جگہ آنا ہے, یا امریکہ آ گیا, یا افریقہ آ گیا, یا انڈیا آ گیا, انہوں کو بھولے بادشاہ اپنی تربیت تعلیم تے تاریخ ٹھیک کر لا. یسوع جتھوں اٹھائے گئے نے نا انہیں اوتھے ہی آنا. وہ دی فیورٹ پلیس زیتون دا پہاڑ ہی ہے, وہ اوتھے ہی زیادہ وقت گزارتے سن تے اوتھے ہی ہن دوبارہ انہوں نے آنا ہے. آمین. یہ بائبل کی انجیل کی تعلیم ہے. دعا میں پسینہ خون بن کر بہنے لگا. ایگنی, تکلیف, اذیت, مگر یسوع جانتا تھا کہ دعا ہی میں فتح ہے. ہاللیلویا. آج بھی بڑے لوگ یسوع مسیح دی صلیب نو ادھر تو لگ کرنا چاہتے, دور کرنا چاہتے. ہمارے بھی بہت سارے کچھ مسیحی نادان ایسٹر کے موقع پر دکھی دکھی گیت گاتے, کالے کپڑے پہنتے,
और एक बंदा मुझे मिला, मैं क्यों की गल भाजी शेव नहीं की, बड़ी अजीब जी शक्ल बनाई। वो कहते की करिए जी दुखों के दिन ने। मैं क्या तेनू कहने गया दुखों के दिन ने? नहीं जी दुखों के दिन ने, मैं सोग मना रहा। ऐसी भी लोगों को तालीम दी गई है सोग मनाने वाली। मसीहत के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यीशु मसीह चाहते तो फरिश्तों के 12 तुमन आकर यीशु की मदद करते, उन्होंने सलीब तो भी बचा लेंदे, ते जेड़े उन्होंने सतान दे सन उन्होंने भी मुकाबला करते। मगर ऐसा यीशु मसीह ने शॉर्टकट नहीं खेला। हम तो शॉर्टकट खेलते हैं ना कि किसी तरीके से हम ऊपर चले जाएं। नो, यीशु मसीह दुखों में से गुजरा है, अजियत में से गुजरा है, एग्नी में से गुजरा है। उसने रूहानी कुश्ती लड़ी है, और जब वो रूहानी कुश्ती लड़ रहा था, वो दुआ कर रहा था बागे गेत्सेमनी में, तो उसका पसीना जो है वो खून की बूंदें बनकर टपक रहा था। यीशु ताकत का इस्तेमाल करके बादशाही हासिल कर सकता था, लेकिन यीशु ने ऐसा, यही पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं, कोई शॉर्टकट ना खेलें। आप धीरे धीरे चलते रहें, खुदा की मर्जी में चलते रहें। आपका जब वक्त आएगा तो फिर आपको अपलिफ्ट कर देगा। इसलिए शॉर्टकट ना जाएं, दुआ वाला रास्ता अपनाएं, दुआ वाला, दुआया कुश्ती करें, रूहानी कुश्ती करें। और उसने दुआ में ठहर कर बाप के इलाही मकसद को पूरा किया। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आगाज भी दुआ रोज़े से हुआ, और यीशु मसीह ने जब मिनिस्ट्री के आखिरी लम्हात में थे तब भी दुआ में ठहरे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें, जो हमारे खुदावंद का सीक्रेट था वो दुआ थी। जब उसने मिनिस्ट्री का आगाज किया तो वो 40 डेज दुआ रोज़े में ठहरे, और जब वो उस काम की तकमील के लिए जिसके लिए बाप ने उसे बुलाया था, उस मकसद की तरफ, कलवरी के पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे, तो तब भी वो दुआ में ठहरे हैं। अपने आप से सवाल करें कि आप सांस तो हर रोज लेते हैं, क्या आपका रूहानी सांस भी चल रहा है? आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप से पूछिए कुछ वक्त के लिए। हालेलुया। वो कहता है दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम कहते हैं आजमाइशें आएंगी तो दुआ भी कर लेंगे,